Like a certain great teacher, president of the Sudan missions, my little wife over there was present when he came to my place, Paris Reed. विशेष महान शिक्षक के समान सूडान मिशन के अध्यक्ष, वहां मेरी पत्नी उपस्थित थी जब वो मेरे पास आया, पेरिस रीड हेड। And he said, Brother Branham, I understand that you was a Baptist. I said, yes, sir, that's right. और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं समझता हूँ कि आप एक बैप्टिस्ट थे। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। And he said, I want to ask you something. He said, when I was a little boy, I said I had an experience and my mother washed and everything to send me to school. उसने कहा, अच्छा, कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, जब मैं एक छोटा लड़का था, कहा कि मुझे एक अनुभव हुआ था और मेरी माँ ने धोए और सब कुछ किया कि मुझे विद्यालय भेजे। And I thought surely, when I got my BA, that I would find Christ. He said that when that was given to me, I didn't find it. और मैंने सोचा, निश्चय ही जब मुझे मेरा बीए मिला कि मैं मसीह को पालूंगा। उसने कहा, जब वो मुझे दिया गया तो मुझे नहीं मिला। When I got my doctor's degree, I thought I would find it. When I got my LLD, I thought I would find it. जब मुझे मेरी डॉक्टरी की उपाधि मिली, मैंने सोचा मैं इसे पालूंगा। जब मैंने LLD पाई, मैंने सोचा मैं ये पालूंगा। He said, Brother Branham, I got enough degrees, both literal and also honorary, that I could plaster your walls with them. But where is the God of the Bible? उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे पास पर्याप्त डिग्रियां या उपाधियां हैं, दोनों वास्तविक और सम्मानित वाली, और मैं आपकी दीवार को उनसे ढांप सकता हूं, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहाँ है? He said, was the teachers wrong? I said, who am I to say that the teachers was wrong? उसने कहा, क्या शिक्षक गलत थे? मैंने कहा, मैं ये कहने वाला कौन हूँ कि शिक्षक गलत थे? He said, well, here's what I understand, that you turned Pentecostal. उसने कहा, यही है जो मैं समझता हूँ कि आप पेंटिकॉस्टल हो गए। And I said, well, I don't say I believe when I was born in the kingdom of God, I automatically was Pentecostal. I said, because Pentecost is not an organization. They've tried to make it, but it isn't. और मैंने कहा, भाई, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के राज्य में जन्मा, मैं स्वतः ही पेंटिकॉस्टल था। मैंने कहा, क्योंकि पेंटिकॉस्टल कोई संगठन नहीं है। उन्होंने इसे बनाने का यत्न किया, परंतु ये नहीं हुआ। God will fill a Presbyterian, Lutheran, or whoever you are. See? So it's an experience and not an organization. You can't organize it. It's an experience. परमेश्वर भरेगा आप जो भी हैं, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन। देखा, इसलिए ये एक अनुभव है और संगठन नहीं है। आप इसे संगठित नहीं कर सकते। ये एक अनुभव है। And he said, well, I want to tell you what happened. He said, from India, these days, they're sending people over here for their education. और उसने कहा, भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या घटित हुआ। उसने कहा, भारत से इन दिनों में वे लोगों को यहाँ अपनी शिक्षा पाने के लिए भेज रहे हैं। He said, in our school, there was a fine Indian boy that come over here and he got his education. And when he went back, I think he was to be, I think electrical engineer or something. कहा, हमारे विद्यालय में एक अच्छा भारतीय लड़का था जो यहाँ आया और अपनी शिक्षा पाई, और जब वो वापस गया, मैं सोचता हूँ उसे जाना ही था। मैं सोचता हूँ इलेक्ट्रिक इंजीनियर, बिजली का इंजीनियर या कुछ। He said, but when they got a school just like Brother Oral Roberts has up there, they teach engineering and whatever. उसने कहा, परंतु जब उनका भी ओरल रॉबर्ट जैसा विद्यालय यहाँ पर है, वे इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाते हैं। So he said, on the way back, I with another minister said to him, now going back to India, and you know the Indians worship Mohammed. इस प्रकार उसने कहा, दूसरे सेवक के साथ वापस जाते हुए उससे कहा, अब वापस भारत जाते हुए, और आप जानते हैं कि भारतीय मोहम्मद की आराधना करते हैं। And he said, why don't you forsake your old dead prophet and receive a resurrected Lord Jesus and take a real God back to India with you, tell your people. और उसने कहा, तुम क्यों नहीं अपने पुराने भविष्यद्वक्ता को छोड़ देते हो और जीवित हो उठे प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो और अपने साथ भारत एक वास्तविक परमेश्वर को लेकर जाओ, अपने लोगों को बताओ। He said, sir, he said, what could your Lord Jesus do for me any more than what my prophet can do?
उसने कहा, श्रीमान, उसने कहा, तुम्हारा प्रभु यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है उससे अधिक जो मेरा भविष्यद्वक्ता कर सकता है? And he said, well, my Lord Jesus can give you eternal life. It's a promise in the Word. और उसने कहा, भाई मेरा प्रभु यीशु तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है, वचन में ये प्रतिज्ञा है. He said, my prophet Muhammad promised the same thing in his Word. उसने कहा, मेरे भविष्यद्वक्ता मोहम्मद ने यही प्रतिज्ञा अपने वचन में की है. And he said, well, you see, he said, my Lord Jesus is raised from the dead. Your prophet's in the grave. और उसने कहा, भाई आप देखिए, उसने कहा, मेरा यीशु मृतकों में से जी उठा और तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कब्र में है. He said, did he raise from the dead? Said you've had 2,000 years to prove it. And 80% of the world has never heard about it. उसने कहा, क्या वो मृतकों में से जी उठा? उसने कहा, तुम्हें ये सिद्ध करने के लिए 2000 वर्ष थे और 80% संसार ने इस विषय में कभी नहीं सुना. You said that Muhammad raised from the dead and the whole world will know it in 24 hours. उसने कहा, मोहम्मद को मृतकों में से जीवित हो जाने दो और सारा संसार 24 घंटों में जान जाएगा. Now, he said, well, look, he said, Jesus is raised from the dead, said, I can prove it because he lives within my heart, said the Christian. अब उसने कहा, अच्छा देखिए, उसने कहा, यीशु मृतकों में से जी उठा है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि वो मेरे हृदय में वास करता है, उस मसीही ने कहा. And Muhammad said, and sir, Muhammad lives in my heart. और मुसलमान ने कहा, और श्रीमान, मोहम्मद मेरे हृदय में वास करता है. He said, but you see, we got power and joy. He said, sir, the Mohammedan religion can produce just as much psychology as Christianity can. And that's truth. उसने कहा, परंतु आप देखिए, हमारे पास सामर्थ और आनंद है. उसने कहा, श्रीमान, मुसलमान धर्म भी वैसे ही मनोविज्ञान उत्पन्न कर सकता है जैसे मसीही कर सकते हैं, और ये सत्य है. I've seen them lay in the street and holler Allah and get in such a condition they could take. Billy and I stood and watched a man run a sword right under his heart, and a doctor got up there and poured water through it and come out, pulled it out, and never hurt him. मैंने देखा है, वे सड़क पर लेटते हैं और अल्लाह चिल्लाते हैं और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं. बिल और मैंने खड़े होकर देखा है कि एक पुरुष ने तलवार अपने हृदय के नीचे से आर पार छेदी. एक डॉक्टर वहां उठा और उसने आर पार पानी डाला और आ गया, उसे वापस खींचा और उसे कुछ नहीं हुआ. See him take splinters and take under their fingernails and run them through and run hooks up through their nose and never even feel it or bleed a drop. उन्हें पतली फांसें ली और अपने नाखूनों के नीचे घुसा दी, आर पार कर दी, नाक में से कांटे घुसाए आर पार, और कभी भी महसूस नहीं किया या लहू की बूंद निकली. They can produce more psychology than Christianity can. वे मसीहत से अधिक मनोविज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं. And Mr. Riaz said to me, said, I know I wasn't talking to some overnight boy. और श्री रीड हेड ने मुझसे कहा मुझे मालूम था कि मैं किसी कल के लड़के से बात नहीं कर रहा हूँ. And he said, we Mohammedans are waiting. और उसने कहा, हम मुसलमान प्रतीक्षा कर रहे हैं. Like they did to our gallant brother Billy Graham. You read it in the paper. When the Mohammedan come to Mr. Graham and said, you take 30 sick people and I'll take 30 sick people. And you heal your 30 and I'll heal my 30, but Mohammed. See? Mr. Graham run from the scene. He wasn't answering. जैसा कि उन्होंने हमारे बहादुर भाई बिली ग्राम के साथ किया. आप इस अखबार में पढ़ते हैं. जब मुसलमान श्री ग्राहम के पास आए और कहा, आप 30 बीमार लोगों को लें और मैं 30 बीमार लोगों को लूंगा, और आप अपने उन 30 को चंगा करना और मैं अपने 30 मोहम्मद के द्वारा चंगे करूंगा. देखिए, श्री ग्राहम दृश्य से भाग गए. वे उसे उत्तर नहीं देंगे. I don't believe I would have done that. I'd have been like the Hebrew children. Our God's able to deliver us from this. मैं विश्वास नहीं करता कि मैं ये करता. मैं इब्री बालकों के समान होता. हमारा परमेश्वर हमें इससे छुड़ाने के योग्य है. Why didn't he send get Oral Roberts or somebody if he didn't believe that? Send to get somebody that did believe it. क्यों नहीं उसने ओरल रॉबर्ट या किसी को बुलाने के लिए भेजा? यदि वो ये विश्वास नहीं करता, किसी और को बुलवा भेजता जिन्होंने इसका विश्वास किया. But you see, by denominationals, oh, they'd throw him out right then. He's got a work to do. परंतु आप देखिए, नामधारियों के द्वारा, वे उसे तभी बाहर कर देंगे. उसके पास करने का कोई कार्य है. However, then he said, when we over in India see you Christians produce what Jesus said that you would do,
said, then we will believe you. जो भी हो, तब उसने कहा, जब हम वहां भारत में आपको देखते हैं, आप मसीही वहीं प्रकट करें जो यीशु ने कहा कि तुम करोगे, कहा तब हम आपका विश्वास करेंगे। He said he raised from the dead and the people would know it because you would do the same works that he did. उसने कहा वो मृतकों में से जी उठा है और लोग इसे जान जाएंगे क्योंकि आप उन्हीं कामों को करेंगे जो उसने किए। Well, he said we do greater works. He said I never said the greater. I just want to see the works that he did first. अच्छा, उसने कहा हम अधिक बड़े कार्य करेंगे। उसने कहा मैंने अधिक बड़े के नहीं कहा, मैं केवल वही कार्य देखना चाहता हूं जो उसने पहले किए। You're not talking to some little fella down on the corner when you talk to one of those them and their theology. आप क्यों बात करते हैं? आप जानते हैं कि आप किसी मामूली व्यक्ति से कोने में बात नहीं कर रहे हैं जब आप उनमें से किसी से बात करते हैं, उनसे, उनके धर्म ज्ञानियों से। So he said, we want to see the works that he did. इसलिए उसने कहा हम उन्हीं कार्यों को देखना चाहते हैं जो उसने किए। Oh, he said, perhaps you're referring to Mark 16. He said, yes, sir. That's one of them, his last commission to the church. ओह, उसने कहा संभवतः आप मरकुस 16 का उल्लेख कर रहे हैं। उसने कहा जी हाँ श्रीमान, ये उसी में से एक है, उसकी कलीसिया को अंतिम अधिकार। He said, when I said a lot of people fanatically believe that chapter. He said, but we learned better scholars in school that Mark 16 from the 9th verse on is not really inspired. उसने कहा अच्छा, अब आप देखिए, कहा बहुत सारे लोग इस अध्याय का हर धर्मिता से विश्वास करते हैं। उसने कहा परंतु हमने सीखा है विद्यालय में अच्छे ज्ञानियों से कि मरकुस 16:9 पद से आगे वास्तव में प्रेरणासन नहीं है। He said, why, Mr. Read it. He said, what part is inspired then? He said, maybe the rest of it is inspired. All the Quran is inspired. What kind of a book are you reading called the Bible? उसने कहा क्यों श्री रीड हेड, तो फिर कौन सा भाग प्रेरणा से है? उसने कहा संभवतः बाकी सब भी प्रेरणा से ना हो, सारी कुरान प्रेरणा से है। आप किस प्रकार की पुस्तक पढ़ते हैं? बाइबल कहलाती है। He said, I made in my heart I was coming to talk to you. I was going to talk to you. उसने कहा मैंने अपने हृदय में निश्चय किया कि मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपसे बातें करने जा रहा था। There you are. If this is not inspired, then what about the rest of it? आप ऐसी ही स्थिति में हैं। यदि ये प्रेरणा से नहीं है तो फिर बाकी के लिए क्या है? It reminds me of a lady in Chicago. Her boy went away to a seminary to learn to be a minister. Some Bible school and seminary. इससे मुझे शिकागो की एक महिला याद आ गई। उसका लड़का एक धर्म विद्यालय में गया कि शिक्षा पाकर सेवक हो जाए, किसी बाइबल विद्यालय में और धर्म विद्यालय। And while he was away, the old mother took real seriously sick. And so they sent word for the boy to stand by. His mother was such a high fever, she had pneumonia, and said that it might be an emergency call. और जब वो बाहर था तो बूढ़ी माँ बहुत ही बीमार हो गई और उन्होंने लड़के के पास संदेश भेजा कि अपनी माँ के पास जाने को तत्पर रहे। उसे बहुत बुखार है, उसे निमोनिया था, और कहा कि ये आपातकालीन बुलाहट हो सकती है। So the boy packed his clothes and got ready. Finally, the next day, he never heard no word through the night. The next day he said, all is well. इसलिए लड़के ने कपड़े बांधे और तैयार हो गया। अंततः अगले दिन उसने सारी रात्रि में कुछ संदेश नहीं सुना और अगले दिन बताया सब ठीक है। So about a year later, he returned from the school in the east, some great school of teaching. इस प्रकार एक वर्ष बाद वो विद्यालय से पूर्व में है लौटा, शिक्षा का कोई महान विद्यालय। And he came home and he greeted his precious mother. He said, after talking a while, he said, Mother, I never did get the chance to ask you, what happened? और वो घर आया और उसने मूल्यवान माँ को बधाई दी और उसने कहा, थोड़ी देर बात करने के पश्चात कहा, माँ मुझे कभी अवसर नहीं मिला कि आपसे पूछूं कि क्या हुआ था। Said, one night they told me to stand by, and the next morning said, you were well. Said, what drug did the doctor use? Said, honey, the doctor didn't use nothing. कहा एक रात उन्होंने मुझसे कहा कि तैयार रहो और अगली प्रातः कहा कि आप ठीक हैं। डॉक्टर ने कौन सी दवा का प्रयोग किया? कहा प्रिय, डॉक्टर ने कुछ भी प्रयोग नहीं किया। You said, well, how did you do it? Said, you know where that little mission is down here on almost to the loop there at the square? Yes. उसने कहा आपने ये कैसे किया? कहा तुम्हें मालूम है नीचे एक छोटा मिशन है वहाँ घुमाव पर,
भवन समूह है ना? हाँ। Said there was a lady that was having a prayer meeting down there one night in this little mission, a poor little humble bunch of people, and said one of them was inspired to come up here and see me. कहा वहाँ एक महिला थी, उनकी वहाँ पर प्रार्थना सभा थी। एक रात्रि छोटे से मिशन में वे निर्धन बेचारे नम्र लोगों के झुंड में, और उनमें से एक को प्रेरणा मिली कि यहाँ आकर मुझे देखे। And two women came, and they asked me if they could bring their pastor up and pray for me and anoint me with oil, and said and lay their hands upon me that I'd be well. और दो स्त्रियां आईं और उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अपने सेवक गण को यहाँ ला सकते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करे और तेल से मेरा अभिषेक करे, और कहा उनके हाथ मेरे ऊपर रखे ताकि मैं चंगी हो सकूं। And said, I told them, sure. And they brought the pastor up, and he laid his hands upon me and prayed and said, honey, you read it right out of the Bible, Mark the 16th chapter, and said, these signs will follow them that believe. और कहा, तुम जानते हो, मैंने उनसे कहा निश्चय ही, और वे अपने पादरी को ले आए और उसने अपने हाथ मुझ पर रखे और प्रार्थना की और कहा प्रिय, और उसने बाइबल में से पढ़ा मरकुस का 16वां अध्याय, कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। And said, you know what? The next morning the doctor was so puzzled he didn't know what to do. There was no fever in me. और कहा, जानते हो, अगली प्रातः डॉक्टर इतना परेशान था कि वो नहीं जान पाया कि क्या करे, मुझे बुखार नहीं था। Oh, he said, Mother, you didn't associate with that group, did you? Said, said, we in the school, we learned that Mark 16 from the 9th verse on is not inspired. ओह, उसने कहा, माँ, आप ऐसे झुंड से संबंध मत रखो। क्या आप? कहा, देखिए, उसने कहा, हमने विद्यालय में सीखा है कि मरकुस 16 9वें पद से प्रेरणा में नहीं है। She said, glory to God. Why, he said, Mother, you're beginning to act like those people. उसने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो। क्यों? उसने कहा, माँ, आप उन लोगों के समान कर रही हैं। She said, I was just thinking something. Said, I've been reading the Bible all the way through and other promises in other places too, similar to that. उसने कहा, मैं कुछ सोच रही थी। कहा, मैं बाइबल को एक सिरे से पढ़ रही थी और दूसरी प्रतिज्ञाएं दूसरी जगहों में भी इसी प्रकार से हैं। And said, I was just thinking, if God could heal me with the uninspired, what would He do with that really is inspired? That's right. और कहा, मैं बस सोच रही थी, यदि परमेश्वर मुझे बिना प्रेरणा वाले से चंगा कर सकता है तो जो वास्तव में प्रेरणा से है उससे क्या करेगा? ये ठीक बात है। To me, it's all inspired. God give me faith to believe it and confirm it. मेरे लिए ये सारा प्रेरणा से भरा हुआ है। परमेश्वर ने मुझे इस पर भरोसा करने के लिए विश्वास दिया है और इसकी पुष्टि की है।